Hello, my dear children. Welcome to Rahi and Mahi show. As per our series of Science Olympiad, today I am going to explain you all in detail the chapter 2 birds. So let's start with the chapter, children. Children, let's start with the first question. Read the given statements. First, dash and dash have long thin legs to wade through water. Wade meaning is that they can easily walk in the water. So, in our options B and D, crane, flamingo is present, which have long thin legs, right? This is the right answer. Now second is dash and dash have sharp curved claws called talons. Now talons are the birds who can easily catch their prey through their sharp curved claws. So our option would be B, because eagle and hawk have sharp curved claws called talons. Okay children, now the second question. Which of these birds uses its beak to weave pieces of leaves, grass and twigs together to build its nest? So the answer is C, the weaver bird, right? This weaver bird weaves very beautiful nest, and its shape is like a tunnel and hole is there inside it through which this weaver bird can enter its nest. Okay children, now third question. The feathers of a bird dash: A, help it to fly, B, keep it warm, C, make it attractive, and D, protect the body. So all our options are correct. The bird's feathers help it to fly, it also keeps it warm, and it makes it attractive, beautiful, and it also protects his body from the rain, summer seasons heat, and winter seasons cold wave, right? So our option would be D. A, B, C and D. All the options are correct for the feathers of a bird. Alright. Now fourth question. Dash is a bird that can fly, but to a very short distance, right? So A, ostrich. Now ostrich is a flightless bird, right? It cannot fly, so this answer would be wrong. B, hen. Hen is a bird which can fly but to a very short distance, so our answer is B. But we will also see crow and pigeon fly very long distance, right? हम देखते हैं हमारे सोसाइटी में या फ्लैट में भी हम देखते हैं कि हमारे बालकनी में भी बैठ जाती है. फ्लैट अगर 5th 6th 7th फ्लोर में भी हो तब भी हमें क्रो और पिजन दिखता है, राइट? तो उनका शॉर्ट डिस्टेंस तो नहीं होगा. ओके चिल्ड्रन, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. द नेस्ट शोन हियर इज मेड बाय डैश, राइट? नाउ वी विल सी हाउ इज़ द शेप ऑफ द नेस्ट. सी, हम देख सकते हैं ये जो नेस्ट है वो लीफ से बना है, राइट? और लीफ से बना है और साथ ही यहाँ पे छोटे छोटे आपको कॉटन के थ्रेड्स दिख रहे होंगे. ऐसा लग रहा है जैसे किसी टेलर ने सिलाई की होगी, राइट? तो अब मैंने ये बोला टेलर ने सिलाई की होगी, सो यू वुड हैव नोन दैट व्हाट इज़ द आंसर, राइट? सो आवर आंसर इज टेलर बर्ड, राइट? See, hummingbird is the smallest bird in the whole world, right? Hummingbird जो होती है वो सबसे छोटी बर्ड होती है, तो उसका नेस्ट भी एकदम छोटी वेरी स्मॉल साइज का होता है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, राइट? नाउ आउल. आउल ऐसी बर्ड है जो कि अबेंडन नेस्ट में रहते हैं. अबेंडन का मीनिंग है कि किसी और का बनाया हुआ नेस्ट हो और उसके चिल्ड्रन बड़े हो जाए और उसके बाद वो छोड़ देते हैं ना बर्ड नेस्ट, तो वहाँ वो ले करती, या तो फिर ट्रीज़ के हॉलो जो पार्ट होता है उसमें भी अपने एग्स ले करती, तो ये भी नहीं होगा, राइट? एंड वीवर बर्ड का तो टर्नल शेप का नेस्ट होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है. सो आवर आंसर इज ए, राइट? नाउ लेट्स सी द सिक्स्थ क्वेश्चन. I make a nest with stones and pebbles and live in a very cold place. I am a good swimmer but cannot fly. Who am I? A is first option is penguin, B option is flamingo, C option is kiwi,
and D option is bald eagle, right? तो फ्लेमिंगो, कीवी एंड बाल्ड ईगल कोल्ड प्लेस में नहीं रहते हैं, राइट? पेंगुइन रहता है एंटार्क्टिका में, जो कि वेरी कोल्ड प्लेस होती है, ठीक है? और वो एक गुड स्विमर भी होता है, स्विम कर सकता है वो, और उसका जो नेस्ट है ग्राउंड में वो बनाता है स्टोन्स और पेबल्स से, राइट? सो अवर आंसर वुड बी ए, पेंगुइन. Now let's see the 7th question. Sohail grouped 3 birds together as shown in the box. All these are dash birds. A. Swimming, B. Climbing, C. Flightless, and D. Perching. Now let's understand first the options. Swimming means वो swim कर सकते हैं. B. Climbing birds, जो कि climb कर सकते हैं wall, tree, right? सी फ्लाइटलेस, फ्लाइटलेस का मीनिंग है जो फ्लाई नहीं कर सकता, वो फ्लाइटलेस होती है, वो खाली वॉक एंड रन कर सकते हैं, वो फ्लाई नहीं कर सकते. एंड डी पर्चिंग, पर्चिंग का मीनिंग है स्मॉल ब्रांच में भी वो अपने क्लॉज से, फीट से, वो स्मॉल टहनी होती है ट्री की, उसको भी वो पकड़ सकते हैं, ब्रांच को इजीली पकड़ सकते हैं, राइट? सो अब हम देखते हैं पिक्चर में कौन कौन सी बर्ड है. तो जो फर्स्ट बर्ड है उसको कैसोवरी बोलते हैं. सी ये जो है वो है ईमू, और ये थर्ड ऑप्शन जो है वो है कीवी, राइट? कीवी पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में, ईमू और कैसोवरी पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, राइट? और ये तीनों ही फ्लाइटलेस बर्ड हैं, इनके विंग्स नहीं होते हैं, ये फ्लाई नहीं कर सकती, राइट? और इनका ये जो 2 बर्ड्स हैं ईमू एंड कैसोवरी, इनकी हाइट होती है 6 फीट 6 इंचेस. ओ माय गॉड, काफ़ी लंबे बर्ड्स होती हैं ये, और बहुत ही रन कर सकती हैं ये फास्ट, राइट? तो हमारा ऑप्शन है सी, फ्लाइटलेस. Now 8th option, that is 8th question. Match the columns and select the correct option. Column 1, body feathers, B, down feathers, C, flight feathers. And column 2 is first, used in flapping, second is give the bird its shape, and C, keep the bird warm. तो सबसे पहले हमको easy देखना है चिल्ड्रन, क्या होगा, राइट? हिंट दे रही हूँ मैं, आप एग्जाम में कैसे फाइंड कर सकते हैं करेक्ट आंसर इजीली. फ्लाइट फेदर सबको पता है, फ्लाइट का मीनिंग है वो फ्लाई कर सकती हैं, राइट? तो फ्लाई करने के लिए वो फ्लैपिंग करेंगी, राइट? तो सी हमारा मैच होगा 1 के साथ, राइट? तो अब देख लो ऑप्शन में C1 किधर है, राइट? बी ऑप्शन में C1 है, यानी कि बी ऑप्शन अपना करेक्ट है. फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए हम देखते हैं A2, यानी बॉडी फेदर्स शेप देती हैं बर्ड को, ये भी करेक्ट है, राइट? और C1 ये हमने देख लिया था. बी, डाउन फेदर्स थर्ड, दैट इज़ कीप द बॉडी वार्म. डाउन फेदर्स बॉडी जो होती है बर्ड की उसको वार्म रखती हैं, राइट? और बॉडी फेदर्स शेप देती हैं. तो हमें इजीली मिल गया, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ 9th, स्टडी द गिवन वेन डायग्राम. ये सर्कल जो होते हैं ना उनको वेन डायग्राम बोलते हैं अगर ऐसे क्रॉस में रहते हैं. एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट. ए, एक्स कुड बी पेंगुइन. वेयर इज एक्स हियर? सो पेंगुइन हैज़ वेब्ड फीट, राइट? एंड flightless wings. Yes, it cannot fly. Penguin cannot fly. So A could be right. Now B, Z could be stork, right? Now where is Z? Z is here, right? Now stork, broad and flat beak, it has webbed feet also it has, but stork can fly. It is not a flightless wing, right? It is not a flightless bird. So B is not the correct option. C, Y could be duck. Now where is Y? Here it is present. So Y has broad and flat beak and it has webbed feet for swimming in water. So it is correct, right? So our answer is D, A, यानी कि X could be penguin, yes, right? And C, Y could be a duck, yes, right, जो मैंने अभी आपको समझाया, right? So now we will see the 10th question.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ए, हॉलो बोन्स इन बर्ड्स हेल्प देम टू फ्लाई, इट इज़ करेक्ट। जो उनकी बोन्स होती हैं हॉलो होती हैं, इस वजह से ही वो फ्लाई कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि हॉलो बोन्स की वजह से उनका जो वेट है वो काफ़ी लाइट हो जाता है। जो हैवी वेट के बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई नहीं कर सकते। सो ए इज़ राइट। बी, स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ बर्ड्स हेल्प देम टू वॉक ऑन ग्राउंड, नो इट इज़ इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप देती हैं उनको फ्लाई करने के लिए। जैसे कि बोट का शेप होता है ना, वैसे ही उन बर्ड का भी शेप होता है। वो वॉक करने के लिए नहीं, वो फ्लाई करने के लिए होता है। सो वी नो दैट बी इज़ रॉन्ग, दैट इज़ इनकरेक्ट, जो हमें चाहिए था। नाउ सी ऑप्शन, क्लाइंबिंग बर्ड्स हैव 3 toes in front and 1 at the back. दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज क्लाइंबिंग टोज़ के ऊपर भी 2 टोज़ होते हैं और थोड़ा नीचे भी 2 टोज़ होते हैं, राइट। तो हमारा बी और सी इनकरेक्ट है। तो अब देखते हैं बी इज़ द correct option. Let's see the 11th question. Study the given classification chart. Which of the following birds belong to group Y and group Z respectively? ये classification chart है birds का। group Y में eagle है, ग्रुप जेड में ईमू है, राइट। ईगल एक फ्लाइंग बर्ड है और ईमू फ्लाइटलेस बर्ड है। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि फ्लाइटलेस बर्ड हमारी कौन कौन सी होती है। एक ईमू होती है, कीवी होती है और कैसोवरी होती है। वो हमारे 3 ऑप्शंस में है, पर ये जो ईगल है वो फ्लाइंग बर्ड है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। क्यों? क्योंकि गूज एक फ्लाइंग बर्ड है, ईगल भी एक फ्लाइंग बर्ड है, और कैसोवरी और ईमू फ्लाइटलेस बर्ड है, राइट। फ्लेमिंगो उड़ सकती है और कीवी भी उड़ सकती है। ओके, और यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा, गूज एंड कैसोवरी, जो कि फ्लाइंग बर्ड है और ये फ्लाइटलेस बर्ड है, राइट चिल्ड्रन। नाउ 12th option, that is 12th question. 5 children made the following statements about birds. अशोक ने बोला all birds can fly, सभी birds फ्लाई कर सकती हैं, ऐसा बोला अशोक ने, जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि सब बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकती, कुछ बर्ड्स फ्लाइटलेस भी होती है, जैसे कि कैसोवरी और ईमू। सानवी ने बोला ऑल बर्ड्स हैव बीक, ये करेक्ट है। आशु ऑल बर्ड्स हैव अ बैकबोन, ये भी करेक्ट है, सभी बर्ड्स की बैकबोन भी होती है, राइट ना। आगे देखते हैं हम। ऋषिका ने बोला ऑल बर्ड्स हैव एन आउटर कवरिंग ऑफ फेदर्स, ये भी सही है, सभी बर्ड्स की फेदर्स होती हैं, राइट। मोनिका ने बोला मोस्ट बर्ड्स ले एग्स वाइल सम गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, सभी बर्ड्स सिर्फ एग्स ले करती हैं, वो अपने यंग वंस को बर्थ नहीं दे सकती, राइट। तो अब हमें फाइंड करना है किसने इनकरेक्ट बोला, राइट। तो आगे हमने देखा था अशोक ने बोला था ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, राइट। तो अशोक एंड मोनिका, तो कहाँ पे हैं हमारे अशोक एंड मोनिका? सी ऑप्शन। So this is the correct answer, right? Now 13th question, select the incorrect statement. A, ostrich has 2 toes on each feet, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑस्ट्रिच के 2 टोज होते हैं हर एक फीट में, ये थोड़ा यूनिक है, ये उनको स्टेबिलिटी देता है, उनको बैलेंस देता है और एकदम फास्ट रन कर सकते हैं वो, इस वजह से, राइट। बी, ऑयल ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ अ बर्ड्स टेल, ठीक है, ये ग्लैंड सच में प्रेजेंट रहता है बर्ड के टेल में, जो कि उनको शाइन देता है, राइट। और जो बर्ड्स वाटर में रहती है उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़ में आता है। ओके, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सी, नेस्ट ऑफ अ फ्लेमिंगो इज़ कॉल्ड ईरी, नो, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि हमारा आंसर सी है। फ्लेमिंगो के नेस्ट को ईरी नहीं बोलते, ईगल के नेस्ट को ईरी बोलते हैं, राइट। नाउ डी, कुकू बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, सही है, कुकू बर्ड कभी भी अपना खुद का नेस्ट नहीं बनाता है, वो किसी और के अबेंडन नेस्ट में ही, या तो अबेंडन भी हो सकता है, या तो जो ऑलरेडी सपोज क्रो, अधिकतर वो क्रो के नेस्ट में ही अपने एग्स को ले करते हैं, और क्रो को पता नहीं चलता है ये कुकू का एग है, वो अपना बैठ जाती है मदर क्रो और उसके
जो ले हो जाते हैं एग्स, उसके बाद वो हैच होते हैं, राइट। उसके जो वार्मथ है फेदर की, उससे हैच होते हैं, छोटे बेबीज़ आते हैं और तब बाद में उड़ जाते हैं, राइट। सो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ 14th क्वेश्चन, इसमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं, राइट। तो उसमें है सम टाइप्स ऑफ बीक्स आर शोन बिलो, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस द बीक विद द टाइप ऑफ फूड इट इज़ अडेप्टेड टू ईट, राइट। अब डी जो है, राइट, ये इसमें देख सकते हो आप, स्ट्रॉ लाइक बीक है जिससे वो नेक्टर को स्वॉलो कर सकती है, सक कर सकती हैं। तो हमें देखो हिंट देनी है, हमें कोई पूरा रीड नहीं करना है, हमें सीधा हमें पता लगाना है कि भाई ये बर्ड है, इसका एकदम स्ट्रॉ जैसा है, नेक्टर चूसती होंगी, राइट। ये तो हमारा सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये डायरेक्टली है, देखो टाइम नहीं मिलता है बच्चों एग्ज़ाम में, तो हमें ऐसे ही कुछ हिंट यूज़ करना है। अब देखो, अब हम उसको क्रॉस चेक करेंगे तो ये ईगल है, ये फ्लैश खा सकती है इसलिए उसका ऐसा बीक होता है, राइट है। अब एफ है, ये डक है तो ये वॉर्म्स, इंसेक्ट और स्मॉल प्लांट्स खाती है, करेक्ट। एंड ये स्पैरो है, राइट, उसकी बीक देखो छोटी सी है तो वो सीड्स खा सकती है। सो आवर आंसर इज़ सी। ऐसे फटाफट हमें कोई हिंट के यूज़ करके और फटाफट हमें आंसर देना है, राइट। नाउ 15 क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द बॉडी पार्ट ऑफ बर्ड शोन बिलो, ठीक है। डी, ई, एफ और जी ये अलग अलग बॉडी पार्ट दे रखे हैं, यानी कि ये जो है उनके क्लॉज हैं, ठीक है, ये सब क्लॉज हैं। ये वेडिंग बर्ड का क्लॉ है जिससे वो इजीली वॉक कर सकती हैं वाटर में, ठीक है। ये टैलेंस का है, इजीली पकड़ सकते हैं ये लोग। और ये है, ये वेब्ड फीट है, ये वेब्ड फीट नहीं लगते, वेब इसलिए बोलते हैं जो स्पाइडर के वेब जैसे लगते हैं, जो स्विमिंग में काम आते हैं, ठीक है। और ये टैलेंस का है, ये इजीली अपने जो प्रे है वो कैच कर सकती है। चलो अब आगे देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। ए, डी हेल्प्स बर्ड्स टू पैडल इन वाटर, B, E helps birds to perch a tree branch, C, F helps birds to kill its prey and tear flesh, and D, G helps birds to wade through water, right। अब हमने आगे देखा था कि G ऑप्शन जो है, एक बार देख लेते हैं, हाँ ये वेडिंग के लिए हमने देखा था, राइट। तो अवर करेक्ट आंसर इज़ डी, ठीक है। ये वेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, फ्लेमिंगो, क्रेन, ये लोग वेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, इजीली वाटर में वॉक कर सकते हैं, ठीक है। एफ ऑप्शन था हेल्प्स बर्ड्स टू किल इट्स प्रे एंड टेयर फ्लैश। अब एफ ऑप्शन हमने देखा था आगे, तो एफ ऑप्शन में नहीं, ये नहीं था। डी तो टैलेंट्स का है जो कि इनकरेक्ट है, राइट। और ई है हेल्प्स बर्ड्स टू पर्च अ ट्री ब्रांच। अब ई ऑप्शन क्या देखा था हमने, नहीं ये उसके लिए होता है वेब्ड फीट स्विमिंग के लिए, तो ये भी इनकरेक्ट है। एंड डी हेल्प्स बर्ड्स टू पैडल इन वाटर। अब डी ऑप्शन हमने क्या देखा था, नहीं ये टैलेंट्स का है, राइट। सो अवर आंसर वुड बी डी, ओके। नाउ अचीवर्स सेक्शन, डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 16 and 17, refer to the given flow chart and answer the following questions. 16th is select the option that correctly identifies any two among P and S, right। अब हमें फाइंड करना है कि कौन सा करेक्टली आइडेंटिफाई होता है P and S से, राइट। तो अभी पहले देखते हैं, ये बर्ड है, ये फ्लाई कर सकती है, कैन फ्लाई, ठीक है। पर पहले अभी ऑप्शंस देख लेते हैं नीचे, क्योंकि हमें तो हिंट यूज़ करनी है, राइट चिल्ड्रन। तो हिंट में क्या दे रखा है, फर्स्ट है, राइट। अब हम ए ऑप्शन है क्यू, पैराकीट, और आर है पेंगुइन। अब क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट। और उसमें ऐसा है कि हैज़ 3 toes इन द फ्रंट एंड 1 एट द बैक। तो ये सही है, ये इनके होते हैं, तो ये नो नहीं होगा, तो यानी कि ये अपना रॉन्ग आंसर है। अब बी, पी पीकॉक। अब पी कहाँ पे है, ये तो इसमें लिखा है कैन फ्लाई, मतलब ये फ्लाइटलेस बर्ड है, नहीं पीकॉक तो फ्लाई कर सकती है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, राइट। नाउ सी है आर फ्लेमिंगो, आर यहाँ पे है फ्लेमिंगो,
कि भाई वो नेस्ट बनाती है ग्रास ट्विग से, तो इसमें लिखा है नो, नहीं बनाती हैं वो ये यूज़ करके, राइट। तो ये अपना राइट आंसर है। एंड सी मैना, तो एस कहाँ पे है, ये कि उनके 3 टोज इन फ्रंट एंड बैक होते हैं, राइट, और वो नेस्ट बनाती ग्रास और ट्विग्स यूज़ करके। तो हमारा राइट आंसर सी है, ठीक है। तो हमें ऐसे हिंट यूज़ करके तुरंत उसका आंसर फाइंड करना है, राइट चिल्ड्रन। नाउ 17 सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग पी एस, तो ये फाइंड करना है पी और एस से करेक्ट ऑप्शन। ए, पी कैन बी अ बर्ड हुज नेस्ट इज कॉल्ड ईरी, अब कहाँ पे है पी, वहाँ पे ऊपर है यहाँ पी। कैन फ्लाई, ये तो फ्लाइटलेस बर्ड बता रहा है, तो ये तो रॉन्ग है, ठीक है। ईगल है, तो ईगल तो फ्लाई कर सकती है, तो ये रॉन्ग है। बी, क्यू कैन बी अ बर्ड दैट मेक्स इट्स नेस्ट बाय स्क्रैपिंग पाइल्स ऑफ मड, कहाँ पे है क्यू, यहाँ पे है, तो पाइल्स ऑफ मड वो यूज़ करके बनाती है नेस्ट, तो नहीं, ये भी रॉन्ग है, राइट, क्योंकि ये 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 एट बैक तो उनके होते नहीं हैं। नाउ सी, आर कैन बी अ बर्ड दैट स्यूज लीव्स यूजिंग इट्स नीडल लाइक बीक टू मेक इट नेस्ट, यानी ये वो है अपना टेलर बर्ड है आर, तो आर है टेलर बर्ड, मेक्स नेस्ट विथ प्लांट लाइक ग्रास ट्विग्स एंड एक्सेट्रा, राइट, ये आंसर राइट है। अब ये डी है, कुकू बर्ड लेज इज एग्स इन द नेस्ट ऑफ बर्ड एस, राइट। अब बर्ड एस है ये, वो ये नेस्ट बनाती है, उनका ये टोज भी होता है, फ्लाई भी कर सकती हैं, और एस ये अपना क्रो हो सकता है, राइट। तो अवर आंसर इज डी, ठीक है। Now let's see the 18th question. Refer to the given Venn diagram and select the correct option regarding x, y and z. ठीक है, ये x, y, z दिया है। Migratory bird has wading feet, lays largest egg in the world, ठीक है। अब 18A, W can be flamingo, ठीक है। अब W यहाँ पे है, अब फ्लेमिंगो के वेडिंग फीट होते हैं, करेक्ट, और क्या वो लार्जेस्ट एग देती है वर्ल्ड का, नो, तो रॉन्ग है ये। नाउ बी, एक्स कैन बी ऑस्ट्रिच, ठीक है। अब एक्स इधर है, तो एक्स ऑस्ट्रिच हो सकती है, तो एक्स में है लार्जेस्ट एग देती है वो सही है। वेडिंग फीट है सही, पर वो माइग्रेटरी बर्ड नहीं है ऑस्ट्रिच, तो रॉन्ग। वाई कैन बी साइबेरियन क्रेन, तो सी ऑप्शन वाई देखते हैं, वाई कहाँ है, माइग्रेटरी बर्ड भी है और उसके वेडिंग फीट भी होते हैं वॉकिंग करने के लिए वाटर में, राइट। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज सी, वाई कैन बी साइबेरियन crane, right? Now we will see the 19th question, okay? Now 19th question is question number 19 and 20. Refer to the given word grid and answer the following question. Bird with which of the following food type is not present in the word in the given वर्ड ग्रिड, राइट। तो सबसे पहले हमने देखते हैं कि कौन कौन सी बर्ड है। तो एक तो पेंगुइन है, ठीक है। पेंगुइन की कैसे फीट होते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये अपना पेंगुइन है, बी ऑप्शन, राइट। अब बर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फीट इज़ नॉट प्रेजेंट, अब पेंगुइन तो प्रेजेंट है तो ये ऑप्शन नहीं है, राइट। अब दूसरे कौन कौन से बर्ड दिख रहे हैं हमें दिख रहा है पैरेट, ठीक है, पैरेट है। फिर उसके बाद कौन सा हमें दिख रहा है, देखो पैरेट जो है तो पैरेट का सी ऑप्शन है, ठीक है, तो ये भी होगा नहीं, ठीक है। अब हमें और कौन सी बर्ड्स दिख रही है हमें फाइंड करना है, HERON, हेरन, है ना। तो हेरन का ये से लॉन्ग थिन होती हैं लेग्स, तो ये भी नहीं है, राइट। अब टैलेंस होती हैं ईगल, तो ईगल तो यहाँ पे हमें कहीं दिख नहीं रहा है ना। तो आंसर हमारा ये है ए, ये टैलेंट्स कैसे फीट होते हैं, क्लॉज होते हैं, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन वी विल सी, सिलेक्ट द बर्ड दैट यू कैन फाइंड इन द गिवन वर्ड ग्रिड। ए, अब हमें फाइंड करना है कौन सी बर्ड यहाँ प्रेजेंट। तो बर्ड दैट वीव्स इट्स नेस्ट फ्रॉम ग्रास, वीवर बर्ड नहीं है। बर्ड दैट स्यूज इट्स नेस्ट फ्रॉम लीव्स, टेलर बर्ड वो भी नहीं है। अ बर्ड दैट मेक्स इट्स नेस्ट यूजिंग स्टोन्स एंड पेबल्स ऑन ग्राउंड, जो कि हमने आगे देखा था, पेंगुइन। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज
सी, राइट। अ बर्ड दैट मेक्स नेस्ट बाय पैकिंग वुड, वुड पैकर, ये भी ऑप्शन में नहीं है। ओके चिल्ड्रन, अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल राही एंड माही शो, राइट। और अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3rd चैप्टर ऑफ साइंस ओलंपियाड के साथ। ओके चिल्ड्रन, टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।